Okay, good evening students. Welcome to our class today. We were dealing with the issue of gender and the state and family. So, in our last class, we were talking about the bourgeois family model that was introduced after the Industrial Revolution acquired quite a big intensity, and the women were finally compelled to step out of their homes and step into the factory and the mode of production. So, when the women ultimately left home and started working outside, that is in the public sphere, you remember we talked about two spheres of the society. One was the private sphere and the other one was the public sphere. So, the women were till now only confined within the private sphere, that is the family, but gradually they stepped into the public sphere, in the public domain, and responsibilities increased. With responsibilities came several emotional, psychological and physical consequences which impacted upon the women's character. Now, we also said that when a woman was compelled to work outside, then certain changes happened within the sphere of the family. That is, the gender specific roles which were so long continuing within the family, they underwent a slight change. And what happened when women had to work outside, their children were put to school under the care of the school staff, teachers, nannies, and also the children were required to be taken care of in the absence of their mothers in their respective schools. Now, we also found that for a woman, the hours of work increased because together with the work assigned in their home in the private sphere of family, they had to spend long hours in their factory working over there. So, let us continue our note, page 4. In our previous lecture, we ended right in page 4 where we talked about children being put to school instead of being vagrants, and they were put under maternal surveillance and were under the vigilance of social workers. ओके, तो देखिए वीमेन उनके लिए लेजिटिमेट यूनियन एंड प्रोक्रिएशन, होम असाइनमेंट, हाउसवर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये सब काम तय कर दिया गया. तो काम से वापस घर लौटने के बाद एक औरत, एक वुमन के लिए इम्पॉर्टेंट काम क्या होगा? देखिए, लेजिटिमेट यूनियन अर्थात अपने पति के साथ उनका सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन, और प्रोक्रिएशन. प्रोक्रिएशन का मतलब है चाइल्ड बर्थ देना, टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चा पैदा करना. होम असाइनमेंट, घर का काम, रोटी बनाना, कपड़े आयरनिंग करना, बच्चों का पढ़ाई को देखभाल करना, और ये सब काम बच्चों को औरतों को करना पड़ता था उनके ऑफिस से घर लौटने के बाद. एंड फाइनली मैरिटल गार्जियनशिप एंड डॉक्टर सुपरविजन बियॉन्ड द प्रीस्ट्स वन. तो पहले क्या होता था, अगर औरत को कोई बीमारी या उसको शारीरिक तौर पे कोई तकलीफ़ महसूस होती थी तो उनके लिए रिलीजियस, प्रीस्ट, इमाम, इन सब को बुलाया जाता था उनको दवाई, जड़ी बूटियाँ ये सब देने के लिए. लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के साथ साथ डॉक्टर्स आए और औरत के बीमारी और इलाज के लिए रिलीजियस प्रीस्ट्स को रिप्लेस करके डॉक्टर्स आने लगे. द डेलीगेशन ऑफ मेन टू द फैक्ट्रीज एंड वीमेन टू द होम and children to the school was a further step in the division of the working class
into family units and the state's assertion of more political and economic control. तो ये जो बूर्जुआ फैमिली मॉडल, इसको इंट्रोड्यूस करने के ज़रिए राष्ट्र ने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया। तो जैसे ही वर्कर्स फैक्ट्री में काम के लिए जाने लगे, वीमेन घर में उनका देखभाल करने लगे, बच्चों को संभालने लगे, तो ऐसे क्या हुआ, फैमिली बना और समाज में एक डिसिप्लिन आया, एक ऑर्डर आया, जो असल में इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट क्लास को ही मदद किया उनकी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में, उनकी प्रॉफिट यानी मुनाफा को और बढ़ाने में। It is important to understand that during this first phase of the reorganization of the family within the capitalist context, the ruling class felt that in order to discipline and control the working class, the priority was to organize them into stable cellular families by will or by force. तो जैसे कि शुरुआत से ही हम कहते आए हैं कि वर्कर्स लोगों को डिसिप्लिन करना, उन्हें एक फैमिली में बांध के रखना और उन्हें मेल प्रैक्टिसेस जैसे कि ड्रिंकिंग, वुमनाइजिंग, इन सब हैबिट से दूर रखने के लिए राष्ट्र को बहुत सारा मेजर्स, कदम उठाना पड़ा था। The dominant discourse of the times asserted that women were to be queens of the home. तो शुरू से ही बूर्जुआ फैमिली मॉडल का कॉन्सेप्ट ये था, इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट क्लास का यहाँ यानी कि रूलिंग क्लास का मकसद ये था कि औरतों के लिए घर का स्फीयर, प्राइवेट स्फीयर को स्पेसिफाई कर देना, जहाँ की रानी बनकर वो राज करेगी, और वर्कर्स यानी मेल लोगों के लिए, फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैक्ट्री को ही उनका वर्किंग स्फीयर बना देना। The feminists radically condemned this notion as well as that of marriage, but this point of view was beaten by the valorization of marriages based on romantic love, on parental bond also based on love, but primarily maternal love and the natural ability of women to educate and procreate. तो देखिए, फेमिनिस्ट्स, थियोरिटिशियंस, फेमिनिस्ट थिंकर्स लोगों ने इस बूर्जुआ फैमिली मॉडल के कंसेप्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि क्यों हमेशा औरत को ही घर संभालना पड़ेगा और मर्द हमेशा काम के लिए बाहर जाएगा, क्यों हमेशा बच्चे संभालना, खाना बनाना ये औरतों का ही काम बनकर रहेगा, मर्द इसमें हिस्सा नहीं लेगा। और तो और फेमिनिस्ट थिंकर्स ने मैरिज नाम की इस इंस्टीट्यूशन को भी क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वेदर टू मैरी और नॉट टू मैरी ये एक वुमन का इंडिपेंडेंट चॉइस होना चाहिए। ज़बरदस्ती फैमिली में ऑर्डर बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखने के लिए, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक औरत को एक मर्द के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन, समाज में इसके लिए काफ़ी समर्थन भी था। कहाँ? जहाँ रोमांटिक लव का मामला था, जब एक लड़का और लड़की आपस से प्रेम करते हैं तो वो शादी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह वो लोग लेजिटिमेट बनकर, हस्बैंड वाइफ बनकर बच्चे भी पैदा करना चाहेंगे, माता पिता बनना चाहेंगे। तो नेचुरली फेमिनिस्ट थिंकर्स की इस मैरिज के खिलाफ जो प्रोपागंडा, जो प्रचार, इसको कई सारे लोग समर्थन नहीं कर पाए थे। Towards the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, after a few signs that the feminist movement was running out of momentum, the movement suddenly began again with new vigor.
तो फेमिनिज्म की ये सब कुछ अल्ट्रा और रेडिकल सोच की वजह से, जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन गलत है, वीमेन को हमेशा घर में बांध के रखना गलत है, तो इन सब आइडियाज़ उस वक्त ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ था समाज में। क्योंकि सोचिए, हम कब की बात कर रहे हैं, द अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, जिस वक्त यूरोपियन समाज तब भी काफ़ी कॉन्ज़र्वेटिव हुआ करता था। तो उस वक्त औरतों में भी ज़्यादा लिबरल व्यूज़ प्रेजेंट नहीं था। तो नेचुरली जब फेमिनिस्ट थिंकर्स ने ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और रेडिकल बातें फैलाया, तो काफ़ी औरतों ने भी इसका समर्थन नहीं किया, जिस वजह से फेमिनिज़म एक बैक सीट में चला गया था। लेकिन फिर से फेमिनिस्ट मूवमेंट कुछ साल बाद एक नए जोर शोर से शुरू हो गया। द प्रायोरिटीज ऑफ द फेमिनिस्ट्स बिकेम obtaining the right to vote, gaining access to professional careers, and gaining the right to obtain high school and college education. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो बाद में फिर से शुरू हुआ, उसका एजेंडा, उसका स्लोगन पहले से बदल गया। तो पहले फेमिनिस्ट लोग सिर्फ बुर्जुआ फैमिली मॉडल को क्रिटिसाइज़ करने में बिजी था, मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज़ करने में बिजी था। लेकिन अभी जो नया फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, इसका कुछ डिफरेंट स्लोगन्स सुनने को मिला, जैसे कि औरतों के लिए वोटिंग राइट चाहिए, जैसे मर्द लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक्ट में हिस्सा लेते हैं, ठीक उसी तरह औरत को भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। उन्हें पब्लिक अफेयर्स में, सरकारी दफ्तरों में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम का अधिकार मिलना चाहिए, और साथ में उनको हाई स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन भी मिलना चाहिए। This period of the feminist struggle coincided again with another phase of reorganization of the family, responding to changes in how production occurred within and outside the family. तो ये नया फेमिनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था ऐसा एक वक्त में जब फैमिली मॉडल फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहा था, मतलब फैमिली स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम में भी चेंज आ रहा था। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम में भी पहले से कुछ चेंजेस आ रहा था, जिस वजह से फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंज आने लगा। On the one hand, women were becoming more frequently employed in production outside the home. तो फिर से देखा गया कि विमेन लोग सिर्फ घर के अंदर, घर के चार दीवारी के दायरे में सीमित ना रहकर प्रोडक्शन सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करने लगा, घर के बाहर ऑफिस में भी जाने लगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के काम में हाथ बटाने लगा। On the other hand, new industries began to provide goods and services that had traditionally been provided by the family, and households started to be more technologically advanced. तो देखा गया काफ़ी सारे सर्विसेज जो फैमिली खुद ही अपने लिए प्रोड्यूस करता था, वो सब सर्विसेज देने के लिए द पब्लिक स्फीयर, यानी कि फैमिली के बाहर पब्लिक स्फीयर में से ही वो सारे सर्विसेज आने लगा, और फैमिली टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। तो मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो समझ में आएगा। देखिए, पहले बच्चों का ख्याल सिर्फ माँ रखती थी, या फिर दादी नानी, इन सब लोग मिलकर एक बच्चे का रियरिंग अप कर लेता था। लेकिन अब बाहर भी बहुत सारे सेंटर्स बने, जैसे कि क्रेश, जहाँ पर बच्चों का देखभाल के लिए सेंटर खोला गया।
तो ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा स्कूल से वापस लौटने के बाद सिर्फ घर में ही जाए, वो स्कूल के बाद क्रेश में दूसरे कई सारे बच्चों के साथ रह सकते हैं, उनके देखभाल करेंगे, उस क्रेश में काम करने वाले स्टाफ, सोशल वर्कर्स और एक्टिविस्ट्स, और फिर जब माँ शाम के बाद घर लौटेगी बच्चा को क्रेश से उठाकर घर में लेकर आएगी। मतलब बच्चों का देखभाल के लिए इन्फेंट केयरिंग सेंटर्स बनने लगा। तो ये सर्विस पहले घर में ही उपलब्ध होता था, लेकिन अब इसको देने के लिए एक बाहर का एजेंसी आने लगा। और ऊपर से फैमिली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बन गया। मतलब फैमिली में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आया जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, जिसका आने के बाद टेक्नोलॉजिकली और इन्फॉर्मेटिकली वो फैमिली ज़्यादा अपडेटेड हो गया। These changes were all associated with the increasingly privatized role of women as wives, mothers, caretakers of the household. तो ये सब changes किस बात से associated था? With the increased privatized role of women. तो women का रोल जितना ज़्यादा privatized होने लगा कि women हमेशा माँ, वो पत्नी और घर की केयरटेकर बनकर रहेगी, उतना ही ज़्यादा वीमेन लोगों के अंदर ये डिमांड दिखाई दिया कि क्यों हम हमेशा घर के चार दीवारी के अंदर सीमित रहेंगे, क्यों हम बाहर नहीं जा सकेंगे। तो जितना ज़्यादा वीमेन लोगों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश किया गया, उतना ही ज़्यादा वीमेन लोगों के अंदर ये इच्छा दिखाई दिया कि वो पब्लिक स्फीयर में प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेगी। दिस प्रोसेस with its roots in the previous century's defense of bourgeois domesticity principles now grew stronger with new ideological backing. तो ये जो औरत लोगों की डिमांड कि हम सिर्फ चार दीवारी के अंदर सीमित ना रहकर बाहर जाएंगे, इलेक्शन में वोट देने जाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम में हिस्सा लेंगे, ये सब डिमांड्स को अब एक आइडियोलॉजिकल बैकिंग मिल गया। और वो आइडियोलॉजी क्या था? द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। फेमिनिस्ट स्ट्रगल, फेमिनिस्ट मूवमेंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, वीमेन लोगों की ये डिमांड्स भी बढ़ता रहा। This new femininity put a heavy burden on the shoulders of women, particularly those in the working class who had a hard time accessing the resources necessary to meet the high standards that the obligations demanded. तो देखिए, ये जो डिमांड्स आने लगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने मांग किया कि सिर्फ घर के अंदर सीमित ना रहकर वीमेन लोग बाहर भी काम करने जाएंगी। तो इससे जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के वीमेन थे, उनको काफ़ी सुविधा मिला। लेकिन जो लोअर क्लास वीमेन थे, यानी वर्किंग क्लास वीमेन, एकदम नीचे की सारी में रहने वाले वीमेन, उनके लिए काफ़ी हार्डशिप्स यानी मुश्किलें सामने आ गई, क्योंकि पहले उन्हें सिर्फ घर में बच्चा संभालना और खाना पकाना पड़ता था, इसी में ही उनका काम सीमित था। लेकिन अब मांग आ गई, समाज की ज़रूरत और समाज की चाहत ये कहने लगी कि क्यों तुम सिर्फ घर के अंदर रहोगे, तुम्हें बाहर भी काम करने जाना पड़ेगा। तो ये लोअर क्लास यानी वर्किंग क्लास वीमेन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया, क्योंकि घर भी उन्हें संभालना पड़ रहा है, ऊपर से बाहर काम पे भी जाना पड़ रहा है। एक अपर क्लास वीमेन के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर काम करने कदम रखेगी तो उनके बच्चों के देखभाल करने के लिए क्रेश है, आया सेंटर्स है, जहाँ से किसी को काम वाली बाई को रख लेंगे और वो ही बाई खाना पकाएगी, बच्चों का देखभाल करेगी, तो औरत चैन से इत्मीनान से बाहर जाके काम कर पाएगी। लेकिन सोचिए, एक वर्किंग क्लास वुमन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि वो उसके पास तो उतना पैसा नहीं कि वो किसी आया या
काम की बाई को रखकर घर का काम कर लेगी और वो खुद बाहर जाकर काम संभालेगी। तो उसके लिए बर्डन हो गया, बोझ बन गया, घर का भी काम करना है, बाहर भी जाना है। This new feminist discourse was in response to demands, particularly bourgeois feminist demands, concerning the need for education of women and the need to have an identity and a value. तो जैसे कि मैंने कहा, ये सब जो डिमांड्स, औरतों को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, औरतों को घर के बाहर आना चाहिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, ऑफिस में काम करना चाहिए, तो ये सब डिमांड्स जो थे, ये डिमांड्स दीज वर मेनली बूर्जुआ फेमिनिस्ट डिमांड्स, यानी कि अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास में रहने वाली औरतों का ही डिमांड्स था ये सब। लोअर क्लास वीमेन का ये सब डिमांड नहीं था, क्योंकि अपर क्लास औरतों को ही एक अलग पहचान, एक अलग स्टेटस और आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी। With the importance placed on housework, women had to gain knowledge of specific scientific methods and formulas for the proper completion of housework. Now it is more the privatization process than the family dominating structure that ensures social control. तो देखिए, हाउसवर्क के ऊपर एक इम्पोर्टेंस था, लेकिन साथ साथ बाहर जाकर काम करने का ये डिमांड, तो इसके साथ एक नया विषय जुड़ गया कि विमेन को अब टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली भी एडवांस्ड होना पड़ेगा, उनको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि वो सोशल कंट्रोल भी अपने बस में कर सके। फैमिली का कंट्रोल तो उसके हाथ में था ही, लेकिन अब जब वो बाहर जाएगी काम करने के लिए, तब पब्लिक स्फीयर में सोशल कंट्रोल भी उसके हाथ में रहे। इस बात को इंश्योर करने के लिए नया युग और नया समाज ने डिमांड किया कि विमेन लोगों को साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड होना पड़ेगा। At the beginning of the 20th century, the feminist struggle was heavily influenced by the fact that women were in the process of changing their role within the society. तो हम सब जानते हैं 20th century की शुरुआत में जो फेमिनिस्ट स्ट्रगल शुरू हुआ जोर शोर से, उसका स्लोगन था कि सोसाइटी में औरत का रोल में एक चेंज चाहिए, सिर्फ घर के दायरे में सीमित ना रहकर वीमेन को पब्लिक स्फीयर में, मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी हिस्सा लेने के लिए इनकरेज किया जाएगा। One of the primary goals became participation of women in public and political life. तो वीमेन को मोड ऑफ प्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट करवाना ही है, साथ में पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि इलेक्शन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इन सब काम में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। This participation, however, was to be mandated and supervised by the state, the church, and the organizations which effected social control, such as political parties, charities, and aid organizations. तो वीमेन पब्लिक लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सके, इस बात का गारंटी कौन दिलवाएगा? राष्ट्र खुद दिलवाएगा। साथ में चर्च जो है, दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, NGOs, ये सब हाथ बटाएंगे औरतों को पॉलिटिक्स में और पब्लिक स्फीयर में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करने में। Society will consider that women should bring to the public sector a contribution which is properly feminine, such as gentleness, love, peace, spirit of sacrifice, altruism, maternal instincts, etc. तो जब स्टेट और सोसाइटी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस वीमेन का पॉलिटिक्स और पब्लिक में पार्टिसिपेशन करने के लिए उस दिशा में काम करना शुरू किया, तो स्टेट और सोसाइटी दोनों का ही एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करते वक्त भी एक औरत के दिल में
दूसरों के लिए रहम रहे, दूसरों का सेवा करने का मनोभाव रहे, जेंटलनेस यानी एक नम्रता रहे, वो कभी दूसरों के साथ झगड़ेगी नहीं, लव दूसरों के लिए उनके दिल में प्यार रहे, सैक्रिफाइस दूसरों के लिए अपना स्वार्थ को कुर्बानी देने का मेंटेलिटी रहे, एल्ट्रुइज्म यानी दूसरों की सेवा करने का मनोभाव रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ये देखा गया कि वीमेन अगर पब्लिक स्फीयर में प्रोडक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर भी रही है तो उसके अंदर का ये जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है, औरतों वाली क्वालिटी, हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, प्यार करना, दूसरों का सेवा करना, ये सब एटीट्यूड्स वीमेन लोगों में होना चाहिए। मतलब सिर्फ स्फीयर बदल रहा है, प्राइवेट स्फीयर से औरत पब्लिक स्फीयर में कदम रख रही है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ अभी भी पहले जैसा होना चाहिए। सोसाइटी विल दस एक्सप्लिसिटली अपील टू वीमेन। एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत ही ऊंचे आवाज़ में सोसाइटी ने औरत लोगों से मांग किया कि एक रिफॉर्मिस्ट वोकेशन बनाइए टू कैनलाइज देयर participation in social life into activities that are useful in preserving the social order। तो देखिए यहाँ पर भी जब सोसाइटी में और पब्लिक स्फीयर में वीमेन हिस्सा लेने आ रही है, तब भी राष्ट्र ने और सोसाइटी ने वीमेन लोगों से ये मांग किया कि आप सोसाइटी में आकर सिर्फ उन्हीं कामों में हिस्सा लो जिन कामों के ज़रिए आप सोशल ऑर्डर बनाए रख पाएंगे। मतलब सोसाइटी यही कहना चाहा कि अपने घर के बाहर कदम रखते ही तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे सोसाइटी का ऑर्डर और संतुलन बिगड़ सके। The agencies of control will orchestrate and drive the feminist social and political engagement to their own interest। तो इससे क्या हुआ? स्टेट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस एसोसिएशंस, इन सब का एफर्ट बन गया, इन सब का कोशिश बन गया कि औरत पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते हुए भी अपना फेमिनाइन जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसके बाहर ना आ पाए। तो घर के अंदर रहकर भी वीमेन जो जो काम करता था, खुद ना खाकर बच्चों को खिलाता था, अपने पति को खिलाता था, अगर बीमार पड़ भी जाती है तो कभी मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, अगर खाना नहीं मिलता था तो चुप रहती थी, बूढ़े बुज़ुर्ग का सेवा करना वो सब औरतों ही को ही करना पड़ता था। तो जैसे पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने के वक्त भी वीमेन लोगों को कुछ ऐसा काम सौंपा गया जो घर के दहलीज के अंदर रहकर उन्हें करना पड़ता था। मतलब जो काम सोसाइटी में मर्द लोग नहीं करेंगे, ऐसा स्ट्रेन्यूअस, लेबोरियस, काफ़ी मुश्किलों वाला काम वीमेन लोगों को दिया गया और बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारा फेमिनाइन चरित्र पर कोई दाग आए। तो मतलब स्टेट ने और दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर भी वीमेन को कंट्रोल करके रखा ताकि वो मर्द की बराबरी कभी ना कर सके। Social and political work of women was allowed and encouraged as long as it did not affect women's expected role and responsibilities as wives, mothers and housekeepers। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, घर के अंदर रहकर वीमेन लोग एक वाइफ, एक मदर, एक हाउसकीपर की जो ड्यूटी निभाती थी, पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करना भी वहाँ तक अलाउ किया गया जहाँ तक ये पब्लिक स्फीयर का पार्टिसिपेशन उनकी घर की कामों को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। मतलब अगर देखा गया कि एक वुमन बाहर काम करने जा रही है, इस वजह से घर आकर वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है या फिर अपने सास ससुर का देखभाल नहीं कर पा रही है, तब वुमेन को डिस्करेज किया जाता था कि कल से तुम काम पे जाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जा रही हो तो हमारा घर का ये सब काम कौन करेगा।
तो सोसाइटी और स्टेट ने एक लिमिट बना दिया कि तब तक तुम्हारा पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेशन अलाउड है जब तक तुम्हारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैम्पर ना हो रहा है। लेकिन जैसे ही हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, तुम्हारा पत्नी का रोल, तुम्हारा माँ का रोल, इन सब रोल के साथ पब्लिक रोल का एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक क्लैश हो रहा है, तभी स्टेट तुम्हें पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगी।